students, welcome to Shri Sid Vidyapith School. I hope you are all doing good and staying safe from this COVID-19. So students, today we are going to begin your new chapter, India's Maritime Meanders. So students, I kindly request you all to use your prescribed textbook because the text in this video is it's blur, so it's to avoid any type of confusion. Use your prescribed textbook for better understanding. So let's begin the chapter. In this chapter, we are gonna read about India's maritime meanders. It's about our Indian Navy, written in a form of conversation between a student and his uncle who is in Navy. So let's begin it. The chapter, India's maritime meanders. Warm up. Read the names of these awards. Do you know on whom these awards are bestowed and why? So let's read the awards. Paramveer Chakra, Ashok Chakra, Veer Chakra, Kirti Chakra, Vayu Sena Medal and Nausena Medal. These are the medals and awards given to the Navy officers who serve in Navy. Let's begin the chapter. Read the 2 lines before reading. Let's read about the Indian Navy, the naval branch of the armed forces. The President of India serves as the Supreme Commander of the armed forces and the Chief of the Naval Staff heads the Indian Navy. तो ये ऊपर में जो अवार्ड्स है वो सारे अवार्ड्स नेवी ऑफिसर्स को दिए जाते हैं और इस रीडिंग के 2 लाइन्स में ये लिखा है कि हम लोग अभी चैप्टर में इंडियन नेवी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और जो प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया के वो इस आर्म फोर्सेस को कमांड करते हैं और वो ही इस फोर्स इंडियन नेवी के चीफ नेवल हेड भी है, मतलब वो इस नेवी आर्मी के हेड और सुप्रीम कमांडर है. सो लेट्स बिगिन. अमन वॉज ऑन टेंटरहुक्स सिंस मॉर्निंग एंड फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज लेसन्स. अमन जो एक लड़का था वो ना सुबह से बहुत ही परेशानी में है, अपने आप को वो पढ़ाई में भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था. He could not even enjoy the game of cricket that the senior boys played against the team of a neighboring school and one hands down. और ना ही वो सुबह से पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पा रहा था, ना ही वो जो गेम क्रिकेट हो रहा था उसके सीनियर बॉयज़ खेल रहे थे उसके स्कूल में, ना उसमें उससे वो एंजॉय कर पा रहा था. उसके सीनियर बॉयज़ किसके अगेंस्ट खेल रहे थे? स्कूल के सीनियर बॉयज़ वो नेबरिंग स्कूल के अगेंस्ट खेल रहे थे और उन लोगों ने जीता भी. He was longing to get home and talk to his uncle Vikrant who was home on a short holiday. वो बस सुबह से इसीलिए परेशान है, वो उसे घर जल्दी जाना था और अपने अंकल से बात करना था. कौन? अंकल विक्रांत जो उसके घर आए हैं हॉलीडे पे. Uncle Vikrant served in the Indian Navy and he always regaled Aman and his friends with stories of his voyages and interesting experiences. Joyous anticipation of the stories that awaited him gave wings to Aman's feet and he rushed home as soon as school was over. तो उसके घर उसके अंकल आए थे विक्रांत. अंकल विक्रांत जो थे वो इंडियन नेवी में काम करते थे, वो इंडियन नेवी के लिए काम किए थे और उन्होंने जब भी आते थे अमन और उसके दोस्तों को उनकी स्टोरीज़ बताते थे. नेवी जो है वो सी आर्म फोर्सेस है, दे वर्क इन ओशियंस एंड सी, सो नेवी वाटर से रिलेटेड है. तो वो अमन और उसके दोस्तों को उसकी कहानियाँ बताते थे, कैसे वो वॉयज पे जाते थे, मतलब वॉयजेस मीन्स वो जो शिप लेकर वो कितने मंथ्स के लिए जाते हैं बाहर, वो सब बताते थे. कैसे एक्सपीरियंसेस होता था पानी में, वो कैसे उन्हें कौन कौन सी डेंजरस वो सब से लड़ना पड़ता था, वो सब के बारे में बताते हैं. कितनी खुशी होती है उनको ये सब से, वो बताते थे. ये सब स्टोरी सुनने के लिए अमन बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करता था. और अब जैसे ही स्कूल छुट्टी हुआ अमन तुरंत घर भागा. अंकल विक्रांत वॉज इन दी वरांडा sipping a cup of tea and chatting leisurely with a friend of his when Aman reached his house.
अंकल विक्रांत वरांडा में बैठकर चाय पी रहे थे और अपने दोस्त से बात कर रहे थे। तभी अमन घर पहुंचा। He smiled cheerfully at him and said, "Not playing football this evening?" अमन shook his head vehemently. तो उन्होंने वो बहुत ही खुशी हो के स्माइल किया और उन्होंने पूछा, तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे आज शाम? अमन ने मुंडी हिलाया यूं ही। No, you promised me that you would tell me all about your work and you can't back out now. So जब उन्होंने अमन को पूछा फुटबॉल नहीं खेलोगे तो उसने मना कर दिया और उसके बाद वो कहने लगा, आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि आप अपनी स्टोरीज़ बताएंगे, अपने काम के बारे में बताएंगे और अब आप इससे पीछे नहीं हट सकते. I don't mean to say it, Uncle Vikrant. My friend Naren, pointing to his friend who also works with me and is posted on the same ship, and I will answer all your questions and tell you all that you wish to know. तो अंकल विक्रांत कह रहे, मैं वैसा नहीं कह रहा था, आई डेंट मीन टू से दैट. अंकल विक्रांत के फ्रेंड नरेन जो उनके तरफ पॉइंट करके बोले थे, वो बता रहे थे कि ये भी मेरे साथ ही काम करते हैं, इन्हें भी मेरे साथ सेम शिप में पोस्टिंग मिली है और हम लोग तुम्हारी सारी क्वेश्चंस के आंसर्स देने की कोशिश करेंगे जो तुम जानना चाहते हो. The main responsibility of the Navy is to protect the coastline so that enemies don't target us. Isn't it? asked Aman. तो इस नेवी के मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोस्ट लाइन में प्रोटेक्ट करे, मतलब कोस्ट लाइन से एनिमीज ना आ सके, वहाँ से इंडिया को कोई टारगेट ना कर सके. तो इनका काम है कि कोस्ट लाइन पे उनका प्रोटेक्ट करना. जैसे आर्मी जो है वो बॉर्डर पे प्रोटेक्ट करती है, जो नेवी है जो कोस्ट लाइन में प्रोटेक्ट करती है हमें. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. Uncle nodded and said, "You know, Aman, our country has abundant ocean wealth comprising a large number of island territories." अंकल ने हाँ बोल के कहा, तुम जानते हो अमन, हमारे कंट्री में बहुत सारी ओशंस है और बहुत ज़्यादा ओशन वेल्थ है. लार्ज नंबर ऑफ आइलैंड, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा आइलैंड टेरिटरीज है. ओवर 10,000 ships pass through the international shipping lanes of this region every year. Over 10,000 ships जो है every year इस island territories इस region से pass होती है. International shipping lanes. About 1,000 million tons of oil is shipped annually around the world from the oil wells of the Persian Gulf to the waters close to India. और हर साल 1,000 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल जो है वो इंडिया को शिफ्ट होती है पूरी वर्ल्ड से, मतलब ऑयल वेल्स ऑफ पर्शियन गल्फ वाटर्स के थ्रू इंडिया को आती है. एंड नॉट ओनली दैट, सेड अंकल्स फ्रेंड नरेन, fishing, seafood industry, oil and gas from offshore oil rigs, salt pearls, minerals from the seabed and tidal electricity generation are other benefits that we derive from the seas and oceans. यही नहीं, अंकल के फ्रेंड नरेन ने कहा, सिर्फ यही नहीं, हमारे इंडिया को बाहर से फिशिंग, सी फूड इंडस्ट्री, ऑयल गैस ऑफशोर से, सॉल्ट पर्ल्स, मिनरल्स फ्रॉम द सी बेड, टाइडल इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे बेनिफिट्स जो है सीज एंड ओशियन से हम डिराइव करते हैं. हमें ये सीज एंड ओशियन से हमें ये सब भी मिलती है. सो वी आर इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग नॉट ओनली कोस्ट लाइन बट ऑल्सो द प्लेंटीफुल नेचुरल रिसोर्सेज दैट वी हैव. सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम सिर्फ कोस्ट लाइन पे प्रोटेक्शन, सिर्फ कोस्ट लाइन को प्रोटेक्शन नहीं, हम ये सारी नेचुरल रिसोर्सेज को भी प्रोटेक्ट करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Beside this, the Indian Navy is also a catalyst for peace, tranquility and stability. यही नहीं, इंडियन नेवी एक कैटलिस्ट है, वो पीस और स्टेबिलिटी के लिए जानी जाती है. इट ऑल्सो प्रोवाइड सक्योर to smaller nations when these nations are in need of humanitarian assistance and relief from natural
utilities such as tsunamis, floods and cyclones. यही नहीं हम और भी बहुत कुछ प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं दूसरे नेशंस को, जो जैसे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, मतलब हम दूसरे नेशंस को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से, नेचुरल यूटिलिटीज सच एज सुनामी, फ्लड, साइक्लोन्स जब होता है तो हम बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं नेवी. अमन sat and lost in thought for a moment. What a great responsibility the Indian Navy had. अमन बैठ गया सरप्राइजिंगली और वो सोचने लग गया अपने ख्यालों में एक पल के लिए, और ये सोच रहा था कि वाओ कितना अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडियन नेवी का. No wonder his uncle looked preoccupied sometimes. Suddenly he sat up straight. उसके अंकल जो थे वो प्रीऑक्यूपाइड रहते थे समटाइम्स, तो उन्होंने एकदम स्ट्रेट होकर बैठने लग गए. How many ships do you have in the navy, uncle? He asked. अमन ने पूछा कितने सारे शिप्स हैं इंडियन नेवी में. तो उन्होंने जवाब दिया, The Indian Navy is a formidable force today, said Uncle Vikrant proudly. अंकल विक्रांत ने प्राउडली बताया कि इंडियन नेवी जो है अभी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, वो इतना बड़ा हो गया कि वो किसी के अंदर डर पैदा कर सकता है. Formidable means causing fear or dread. We have 141 ships and submarines and more than 200 aircrafts. Ours is the 5th largest navy in the world now. तो उन्होंने बताया कि पूरे 141 शिप्स और सबमरीन्स है इंडिया में, और मोर देन 200 एयरक्राफ्ट है इंडियन नेवी में. और पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो नेवी है वो पूरा 5th लार्जेस्ट नेवी है पूरे वर्ल्ड का. आई एडमायर योर यूनिफॉर्म, सेड अमन विद अ शाई स्माइल. आपकी यूनिफॉर्म मुझे बड़ी अच्छी लगती है, अमन ने शर्मा कर बोला अंकल से. आई थिंक यू रियली लुक वेरी हैंडसम इन इट. और वो कह रहा था मुझे लगता है आप उसमें तो बहुत हैंडसम लगते होंगे. थैंक यू, सेड अंकल एंड नरेन टुगेदर. और थैंक यू कहे अंकल और उनके फ्रेंड दोनों एक साथ. बट डू यू नो व्हाट्स आवर मोटो इज? इट्स अ शनो वरुणा, a Sanskrit saying which means may the Lord of the oceans be auspicious unto us. फिर अंकल नरेन ने अमन से पूछ रहे थे, क्या तुम हमारे मोटो जानते हो? नेवी का मोटो क्या होता है? वो शन्नो वरुणा है. उसका संस्कृत मीनिंग है मे द लॉर्ड ऑफ द ओशंस बी ऑस्पिशियस अनटू अस, मतलब जो ओशन के देवता सारे हैं वो उनके लिए अच्छा साबित हो, लकी हो उन पे, ताकि कोई भी अगर वो वॉयज पे जाए कुछ, मतलब वो हमेशा उनकी प्रोटेक्ट करे. We do need the protection of the seas, said Uncle Vikrant on a more serious note. क्या हमें ये सी का प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है? अंकल विक्रांत सीरियस होकर बोल रहे थे. One of our most daring and courageous operations took place on 3rd and 4th December 1971 during the Indo-Pak War. Many of Pakistani ships were destroyed the Karachi harbor. अंकल विक्रांत फिर बोले, हमारा जो सबसे बहुत ज़्यादा डेयरिंग और करेजियस, मतलब बहुत ही टफ वाला और बहुत ही हिम्मत वाला ऑपरेशन था, वो कब हुआ था? 3rd और 4th सितंबर को हुआ था. कहाँ कब हुआ था? इंडो पाक वॉर के बीच में हुआ था, जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी शिप्स को डिस्ट्रॉय किया था हमारी इंडियन नेवी ने. कहाँ? कराची हार्बर में. इज दिस द रीज़न वाई 4th December इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज अ नेवी डे? वाओ, अमन ने पूछा, क्या यही रीज़न है कि जो December 4th को एवरी ईयर नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं? यू आर स्मार्ट अमन, सेड अंकल विक्रांत, पैटिंग हिज नेफ्यूज हेड अफेक्शनेटली. Yes, such a daring feat deserves to be recalled every year, doesn't it? तो उनके अंकल ने बोले, अमन के अंकल ने बोले, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, और उसके सिर पर हल्का से पैट करते हुए बोले, तुम तो बहुत स्मार्ट हो अमन. उसके बाद बोले, हाँ, इतना डेयरिंग
फीट जो है उसे वो ऑफ कोर्स डिज़र्व करता है कि एवरी ईयर उसे हम लोग याद करें। इतना जो करेजियस काम था कि इंडो पाक वार के बीच में जब इंडिया ने पाकिस्तान के सारे शिप्स को डिस्ट्रॉय किया था, वो डे को हम हर साल याद करना मतलब वो बनता है। इट्स अ मेमोरेबल डे टू रिकॉल इट। अमन nodded happily, thinking of how proud the nation would have been of her heroes. अमन फिर खुशी से सिर हिलाया और बोला, कितना प्राउड हमारे नेशन फील करती होगी कि उन्हें इतना मतलब अच्छे हीरोज़ मिले इंडिया को, इतना जो देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये तो प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए। But remember, Aman, a good navy is not only about war and fighting on seas. According to the former US President Theodore Roosevelt, a good navy is not a provocation to war. It is the surest guarantee of peace. So, पर उनके अंकल अमन को बोले, नहीं अमन, एक गुड नेवी होने के लिए हमेशा वॉर और फाइटिंग ओशियन और सीज में फाइटिंग करना ज़रूरी नहीं है। अकॉर्डिंग टू यूएस प्रेसिडेंट, यूएस के पहले जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम है थियोडर रूजवेल्ट, उनका हिसाब से एक गुड नेवी वही होता है जो किसी को बिना प्रोवोकेशन मतलब मेकिंग समवन एंग्री, किसी को बिना गुस्सा दिलाए ना वॉर का आगमन करते हुए वो पहला जो ये है पीस को दे, कि उन लोग का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे मेंटेन द पीस बिटवीन द टू ओपोनेंट्स। देन अगर उन लोग नहीं मानेंगे देन वी शुड कॉल फॉर द वॉर। I will tell you how the work on the warship is carried out, said नरेन। नरेन अंकल फिर अमन को बोले, मैं बताता हूँ कि कैसे वॉरशिप में काम होता है। Life on a warship or a submarine is fraught with challenges. लाइफ वॉरशिप में और या फिर सबमरीन में जब वॉर के लिए जाता है उसमें लाइफ बहुत ही चैलेंजिंग होता है, फुल ऑफ चैलेंजेस, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा हिम्मत होना चाहिए। अ वॉरशिप, अ सबमरीन और अ नेवल एयर स्टेशन इज़ कमांडेड बाय द कमांडिंग ऑफिसर। वॉरशिप, सबमरीन या फिर नेवल एयर स्टेशन जो है वो ये सब किसके कमांडिंग से होता है? कमांडिंग ऑफिसर जो होते हैं वो इसे कमांड करते हैं, वो उन्हें असिस्ट करते हैं। ही इज़ असिस्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हु हेड्स द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट एंड इज़ द सेकंड इन कमांड। और उन्हें कौन असिस्ट करता है? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो नेवी का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं वो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का भी हेड होते हैं और वो पहले कमांडिंग ऑफिसर कमांड करते हैं, उसके बाद ये कमांड करता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। द अदर हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट आर रिस्पॉन्सिबल टू द CEO फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। जो बाकी हेड्स होते हैं डिपार्टमेंट्स के वो CEO को कमांड करते हैं फॉर द मतलब उन्हें वो जो भी रहता है वो CEO को कमांड करना पड़ता है। The engineer officer maintains the ship. The electrical officer maintains the capability to generate and distribute electricity on board and looks after the weapons and sensors. So engineering officers का काम होता है कि वो शिप को मेंटेन करे और इलेक्ट्रिक ऑफिसर का काम होता है कि वो कैपेबिलिटी को जनरेट करे कि शिप कितना कैपेसिटी लोड ले सकती, कितना कैपेसिटी उसका है वो सब चेक करे और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करे, मतलब पूरा शिप में कितना इलेक्ट्रिसिटी हो वो सब देखे और वेपन्स और सेंसर्स को देखती है। ये सब काम है इलेक्ट्रिक ऑफिसर का। The logistics officer looks after the supply of food, clothing and fuel and ensures that the men are well taken care of. और लॉजिस्टिक ऑफिसर का काम है कि वो इन्हें खाना दें, क्लोथिंग देखे, इनके फ्यूल देखे शिप का और ये सारे जो स्टाफ है इनका ख्याल रखे। A small kitchen called the galley in a warship or submarine is the life of a vessel wherein 2 or 3 cooks working round the clock in a small confined space and produce some steers and hygienic meals for the shipmates. और वॉरशिप या सबमरीन में एक छोटा सा किचन होता है, उसको गैली कहा जाता है। उसमें 2 या 3 कुक्स होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू टाइम वो काम करते हैं। वो इनका काम है कि वो जो स्टाफ रहते हैं सबमरीन या वॉरशिप में उनके लिए हाइजीनिक खाना बना के दे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एंश्योर दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ एफिशिएंट, कंटिन्यूड अंकल विक्रांत।
ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एफिशिएंट रहे। ये मतलब एक शिप में ये सारे एक साथ होंगे तभी एक वॉरशिप होगी या फिर एक कोऑपरेटिंग होगी, तो ही जो भी मिशन होगा वो कंप्लीट हो पाएगा। फॉर द लाइफ एट सी इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस एंड क्विक डिसीजंस। लाइफ सी, पानी में जो लाइफ होता है बहुत ही चैलेंजिंग होता है इनके लिए, उसके लिए इन्हें बहुत क्विक डिसीजंस लेना पड़ता है। एवरी इंडिविजुअल इज़ इंटरेस्टेड विद अ स्पेसिफिक रोल फॉर विच ही और शी हैज़ बीन स्पेसिफिकली ट्रेन। और सबको एक बात का होना चाहिए कि एवरीवन शुड रिस्पेक्ट देयर ईच अदर्स डिसीजन। सबको एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए और सबके अलग अलग रोल्स होते हैं जिसके लिए उन्हें चाहे लड़का हो या लड़की, उन्हें पहले से ही ये सब चीज़ के लिए स्पेशली ट्रेन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफिसर्स इन दिस शिप वुड बी प्रोफिशिएंट नेविगेटर्स while other may be experts in the use of weapons such as missiles, guns and torpedoes. People who underwater missiles. Okay, so torpedoes means underwater missiles. So जो शिप में इनके सारे अलग अलग काम होते हैं, जैसे कि ऑफिसर्स जो होते हैं उन्हें ये सब चीज़ के लिए स्पेशली ट्रेन किए जाते हैं और सबके अलग अलग एबिलिटीज़ होते हैं। लाइक एक कोई नेविगेटर्स होते हैं कि जिन्हें रास्ता मतलब सही डायरेक्शन का पता होता है, कोई ये वेपन्स यूज़ करने में एक्सपर्ट होता है, कोई मिसाइल्स चलाने में, गन्स चलाने में, ये सब में एक्सपर्ट होते हैं। सो एवरी वन इज़ सबको उनके अकॉर्डिंग ट्रेन किया जाता है, उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही ट्रेन किया जाता है। आई वुड लाइक टू बी अ पायलट इन द नेवी, सेड अमन सडनली। अमन ने कहा मुझे ना पायलट बनना है नेवी का। I feel it will be dangerous but rewarding. Do you think I can be a pilot if I work hard towards my goal, Uncle Vikrant? अमन सडनली कहा मुझे पायलट बनना है अंकल, और वो ये भी कह रहा है कि मुझे पता है कि बहुत ही डेंजरस है बट बहुत ही रिवॉर्डिंग है। अगर हम लोग उसमें सक्सेसफुल हुए तो ये बहुत ही प्राउड वाली बात है, उससे बहुत खुशी होगी, रिवॉर्डिंग वाली बात है। और वो पूछ रहा है आपको लगता है कि मैं एक अच्छा पायलट बन पाऊँगा अगर मैं मेरे गोल की तरफ अच्छी तरह मेहनत करूँगा तो? अंकल विक्रांत से पूछ रहा था। आस्क्ड अमन लुकिंग एट Uncle Vikrant and Naren expectantly. तो ये अंकल विक्रांत से अमन पूछ रहा था और वो अंकल विक्रांत और नरेन अमन के तरफ सरप्राइजिंग होके देख रहे थे। ऑफ कोर्स यू कैन, सेड अंकल विक्रांत अनहेजिटेटिंगली। हाँ ऑफ कोर्स तुम बन सकते हो, बिल्कुल बन सकते हो। द पायलट्स इन द नेवी कुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू फ्लाई अ रेंज ऑफ aircraft from water planes such as MiG-29K to large Boeings to helicopters from small decks of the ships operating over calm to rough seas by day or night. So अंकल विक्रांत और उनके फ्रेंड नरेन बोल रहे हैं यस तुम ऑफ कोर्स बन सकते हो। और जो पायलट्स होते हैं नेवी में उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है एयरक्राफ्ट उड़ाने में। उनका काम होता है कि उनको एक अलग प्लेन्स दिया जाता है, फाइटर प्लेन्स फाइटर प्लेन्स होते हैं सच एज MiG-29 के जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, मतलब वो शिप्स को ऑपरेट करने में काम आते हैं। मतलब वो ऊपर से उन्हें डायरेक्शन बताते, उन्हें हेल्प करते ऊपर से कि कौन से डायरेक्शन में जाए, क्या करे। तो उन्हें भी मतलब नेवी में भी एयरक्राफ्ट का काम होता है। The Navy also has officers and men who specialize as Marine commandos, Marcos, who are the allied fighting forces। और नेवी में ऑफिसर्स है जो कि स्पेशलाइज है इस मरीन कमांडोज में, उनको कहा जाता है मार्कोस। वो ये फाइटिंग फोर्सेस में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। Do I have spent most of my time at sea? asked Aman and Uncle Vikrant laughed। क्या मुझे सारा टाइम सी में ही बिताना पड़ेगा? ऐसा अमन अंकल विक्रांत से पूछा था और अंकल विक्रांत हंस रहे थे। आर यू हैविंग सेकेंड थाट्स अबाउट जॉइनिंग द नेवी? ही आस्क्ड इन हिज फोर्थ साइड। तो अंकल विक्रांत बोले थे क्या तुम बैक ऑफ तो नहीं कर रहे हो कि मुझे
नेवी ज्वाइन करने के लिए, ये डर से कि तुम्हें दिन भर मतलब तुम्हें ज़्यादा टाइम सी में स्पेंड करना पड़ेगा। Aman looked a trifle abashed. Aman, the ship has its own home port and no one gets to spend some time in or close to that port. Every individual gets an opportunity to visit far-flung places in India and abroad. तो अंकल की बात सुनकर, जैसे अंकल बोले कि क्या तुम नेवी ज्वाइन करने से बैक ऑफ कर रहे, अमन थोड़ा एम्बैरस हो गया। फिर उसके अंकल ने बोला हर शिप का एक होम पोर्ट होता है, वहाँ जहाँ उन्हें जहाँ ऑफिसर्स को या फिर जो उन्हें थोड़ा टाइम पोर्ट में बिताने को मिलता है। मीन्स कि उन्हें सारा टाइम सी में नहीं रहना पड़ता, ना ही शिप में सारा दिन रहना पड़ता। तो अगर वो पोर्ट उस शिप के क्लोज है तो उन्हें वो पोर्ट में रहने को मिलेगा। एवरी इंडिविजुअल गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट फार फ्लंग प्लेसेस इन इंडिया एंड अब्रॉड। और सबको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो इंडिया के दूर दूर प्लेसेस को विज़िट करें और अब्रॉड भी जाने को मिलता है उन्हें। फर्स्ट सी द नेवी लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ अ फैमिलीज थ्रू अ फैमिली वेलफेयर सेल विच इज़ मैन 24/7। और नेवी जो है हमारे फैमिलीज़ की भी देखभाल करती है। उसका एक सेल है, वेलफेयर सेल, उसका नाम है 24/7। So, are all your questions answered, young man? asked Naren, and Aman nodded and thanked him and his uncle. So, नरेन अंकल, विक्रांत अंकल के फ्रेंड नरेन अमन से पूछ रहे हैं क्या तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स तुम्हें मिल गए यंग मैन? तो अमन बोला येस, और उसने थैंक किया उन्हें और अंकल विक्रांत को थैंक किया अमन। और उसके बाद then holding his uncle's hand he asked, would you come over to our school to address the students? We all are eager to know how the Navy works and would like to hear more about it from both of you. फिर अमन ने अंकल का हैंड पकड़ के पूछा कि आप हमारे स्कूल आ सकते हैं और हम हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स को एड्रेस कर सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी है कि जानना है कि नेवी कैसे काम करती है और भी बहुत सारी स्टोरीज सुनना है आप दोनों से। इफ़ यू शेयर सम ऑफ़ योर एक्सपीरियंसेस विद अस इट विल बी वंडरफुल। अगर आप हम लोगों से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। We certainly will, said the two friends together. Keep your questions ready and we will be there to answer them. और वो दोनों बोले हाँ ज़रूर करेंगे। और बोले अगर तुम्हारे क्वेश्चंस को रेडी रखना, अगर तुम्हें और भी क्वेश्चंस है तो हम उसे आंसर करने के लिए रेडी हैं। अमन thanked them and the three of them went out to the ice cream parlor to have the treat that Vikrant had promised his nephew. फिर उसके बाद अमन उन्हें थैंक किया और तीनों आइसक्रीम पार्लर गए। और जैसे ही उनके अंकल विक्रांत ने अमन से प्रॉमिस किया कि उसे ट्रीट देंगे, वो तीनों आइसक्रीम पार्लर गए फिर आइसक्रीम खाने। So students, here are the full chapter completed. If you have any doubts regarding this chapter, you can ask me, and please read the chapter nicely, thoroughly, understand it. If you have any doubts, you can ask me. I'm going to clear it out in the next video, and in the next video we are going to solve the question and answers of this chapter. Until then, read the chapter thoroughly.